establish themselves as soon as possible. Today, we are here to celebrate one of the most important events in our country's history. That is our Independence Day. This day marks when our nation broke free from the shackles of British rule and gained the freedom to govern ourselves. A very warm welcome to all of you on this glorious day as we gather here to celebrate the occasion of Independence Day. So here we have our chief guest, Mr. Karthik Joshi, respected principal, Sister Rose, and Sisters of Management. Let's welcome them with a huge round of applause. I request Manish sir, Sampada teacher, and Deepika teacher to welcome the dignitaries by taking the badges as a gesture of respect. Our flag, our tricolor honors those who have fought to protect it, and it is a reminder of the sacrifices of national heroes. तेज सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है. As we raise our flag and sing our national anthem, let us remember the unity and diversity that makes our nation strong. Now I request our chief guest and all the dignitaries to come near the stage for the flag hosting ceremony. Now, I request all the dignitaries to take their seats. Our
अपनी पूरी शान से। हमें मिली थी आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, लगी गूंजने थी दसों दिशाएं वीरों के यशगान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। Honorable Chief Guest Mr. Kartik Joshi, respected Sister, Principal Rose, and all the sisters of management, respected teachers and my dear friends, a heartiest welcome to all of you. Prayer means the purification of one's soul. It takes away negative thoughts from our minds and creates a positive aura. So let's join our hands and close our eyes to seek blessings from the Almighty God on this special day. Dear Lord, please bless my country and all those who work hard to lead it. May you always be king of this land. Bless every citizen of our country so that we may work for peace, prosperity and true freedom. Strengthen our hands so that we may truly build a nation of hope, prosperity and love. We are dependent on you for peace, security and government. Enlighten our minds so that we always work for the betterment of our country and countrymen. Bless all the children of our country so that they can become good citizens of our nation and serve our country. Let the light of our country shine in the name of our God. We are profoundly delighted to take this opportunity to introduce the chief guest for the day. He is none other than Mr. Kartik Joshi. Mr. Kartik is the fastest Indian at Comrade Marathon 2023. Mr. Kartik started his running career by looking at the army cadets, and with the passage of time, they became his idols. He started his career in the year 2016. He ran his first marathon in the year 2017. Mr. Kartik became the first Indian runner who won the silver medal in Comrade Marathon history. He stood as a runner-up at the Open 12-hour stadium run. Running an ultra-marathon is his passion. Sir, we are pleased to have you and we wish you luck for a successful running career. It's a privilege to welcome you, sir. Now, I request Sister Anima to honor Mr. Kartik with a sacrament. Now, I request our principal, Sister Rose, to present our venerated chief guest a memento as an expression of our gratitude and the inexplicable bond we share. Thank you, Sister. Now, as we continue our celebration, I request all the dignitaries to please proceed to the auditorium. I request all the students to proceed to the auditorium. Please maintain silence. Once again, welcome to our Independence Day celebrations and let us raise our voices to celebrate the freedom and opportunity that is our birthright as citizens of this great nation. Now, may I request our principal, Sister Rose Anthony, to motivate us with a word of wisdom on this special day. Where the mind is without fear and the head is held high, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. This is a beautiful song written by Rabindranath Tagore. With immense joy, on behalf of the entire fraternity, I extend a heartiest welcome to Mr. Kartik Joshi, the chief guest of this day. And of course, who is the international player represented in various parts of the world. Thanks for being an inspirational figure for many young students to strive towards success and achievement. We are indeed grateful to you, dear sir, for accepting our invitation and becoming our chief guest for this today's event.
The land of gods, the land of diversities, the land of festival, whereby every man and woman from every community, every religion, every culture celebrates and lives together as one body. As Indians, no doubt, this India is incredible. Today, the 15th August, is India's Independence Day, and we Indians are proud to have owned our freedom many years back. As we gather here today, I take this special opportunity to congratulate every student and teacher of our school for taking efforts in awakening the patriotic spirit in all of us, which would be witnessed in short while. On this day, let us also remember the importance of unity and how it played a vital role in our fight for freedom. Our forefathers were united in their cause and worked together to achieve it. Today, we must continue to work together to build a strong and prosperous country, regardless of our differences. Once again, I wish all of you a happy Independence Day. Thank you and have a nice day. Jai Hind. Thank you, sister, for enlightening our paths. Independence Day is also a time to reflect our responsibilities as citizens. Let us remember that the freedom we enjoy today came at a great price, and it is our duty to preserve and enhance it for the generations to come. We must embrace the values of unity, tolerance, and inclusivity and work towards building a nation that stands as a shining example to the world. Being independent means freedom to speech, freedom to fundamental rights to each and every citizen of the country. Independence is important to lead a life of freedom. In the absence of independence, we would have become a slave. All the people should value the independence which we have achieved and should never forget our freedom fighters. आज हम भारत के स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज हम उन सभी सैनिकों को सलाम करते हैं जिन्होंने हमेशा हमें कुर्बान किया है। माझे गले बांधे कफन, तेरी रक्षा की कसम खाई है, सरहद पर खड़े रहकर भी आजादी की रीत निभाई है। आजादी के उत्सव को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने विद्यालय के कोर ग्रुप को उनकी शानदार प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। Yeah.
It was indeed a melodious performance. Today is not just a date in our calendar marked in red as Independence Day. It is much more. In fact, this is the day when the dreams of our valiant patriots and nationalists fulfilled. The dream of an independent India, our India. No one foreign, no more bondage, no more jails and tortures, no more beatings and insensible gunshots in open daylight, but only the bliss of freedom. We have gathered here to enjoy the happiness we received in exchange for the bloodbath of 200 years. We also bow down today to those uncountable, unnamed souls who have bravely laid down their lives for our motherland. We salute them and say in chorus, Vande Mataram. Now, I call upon Preet Palwal, English Literary Head, for English speech. If your blood doesn't rage, then it is water flowing in your veins. For what is the flush of youth, if it is not of service to the motherland? A very warm and pleasant morning to the esteemed dignitaries, teachers, and all my dear friends. On the tantalizing morning of this holy day, with patriotic fervor and pride, on 15th August, each Indian fills his heart with immense respect and love for his motherland. Each year, on this day, one unfolds the hues of saffron, pure white, and divine green with tribute. Unrolling the Indian tricolor in the nation's capital, our leaders made beautiful memories with vibrant radiating love for the nation. In reminiscence of this pious day, India declares itself to be independent in all respects. A struggle of about 200 years and a passion. Passion to live each day like a free bird. Passion to win through all the battles. And finally, a passion to visualize the dawn of a rising sun in the nation has led India to learn how to fight back for every situation which comes across to stop her. With the beginning of a new era, India tries to unfold itself with vibrant hues of form, progress, and perseverance. Diving deep into the reels of India's history, we get to see how our freedom fighters fought for winning the battles and envisioned rising India into our independent nation. Their invaluable sacrifices led us to live today in a civilized state, with each night sleeping comfortably. The elixir of equality and justice, which our leaders have spread across the country, seems to be the biggest phenomenon that India could ever face. It is an inspiration to all our youth to have a courage and religiously celebrate the pride of being born in this country. Being the citizens of India, it is our prime responsibility to uphold the virtues of nation, stand for the nation, be for the nation, and be of the nation. The youth, who are the pillars to uphold the virtues of tolerance, love, and peace, must have a fellow feeling amongst themselves and should have a warm blood to fight for our country. At last, I would like to end my speech with a note of gratefulness for those who became an epitome of simplicity, humility, and wisdom. I pay tribute to all the noble personalities on this auspicious day. Let's be the footprints of those great leaders and be on a path for creating an incredible and prosperous India. Thank you. Thank you, Preet. Now, as we continue our celebration, we have series of cultural performances that will showcase the diverse and rich heritage of our nation. We have talented artists who will present mesmerizing patriotic dance performances, and theatrical acts that will remind us of the struggles and triumphs of our nation's journey towards independence. Now, I am glad to announce the beginning of the senior group singing competition for the students from grade 9th to 12th, the theme of which is patriotism. I would like to introduce you to all of the honorable judges for today's competition. The judges are Sister Nani, Prachi teacher, and Anjana teacher. I request all the judges to please take their seats. The decision of the judges will be final. Please put your hands together to welcome our first performer group, the students of Orange House.
जहाँ डाल डाल पर सोएगी चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। पहले लाठी पकड़े चलती थे वो शान से, सारे काफे चल 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 सुनकर उनका नाम ले। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर कदम अपना करेंगे, हर कदम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। ये मेरा इंडिया, I love my India, सनम मेरा इंडिया, सनम मेरा इंडिया। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India, ये मेरा इंडिया, I love my India। ये आजाद हिंदुस्तान नहीं होता अगर किसी माँ का बेटा इस वतन की खातिर कुर्बान नहीं होता। सारे रिश्ते आते भुलाकर सीने पर गोली खानी पड़ती है मेरे दोस्त। इस वतन की खातिर मरना इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। भारत माता की जय, भारत माता की जय। Thank you, volunteers, for your royal performance. Now, it is the turn of the students of Yellow House to showcase their talent. ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू,
Now, let's move forward and get ready to listen to the angelic voice of Blue House. तेरी हवा में जिंदा
What a wonderful performance! The tone of the music is still tickling our eardrums. Please give a huge round of applause for the performers. गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा आसमान में देश का सितारा। आजादी के इस दिन आओ मिलकर करें दुआ, बुलंदियों पे लहराता रहे तिरंगा हमारा। Now I invite Ishita Mishra, Hindi literature head, for the Hindi speech. आज देश की शान देश की हम संतान हैं। 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, अतिथिगण, सम्मानीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त कर मुझे बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है। आज के पावन दिन की बात ही कुछ और है। आसमान में सूरज ने मानो अपनी चमक से एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। हवा के झोंके हमारे राष्ट्र की महागाथाएं गुनगुना रही हैं। आज मिट्टी की एक अनोखी मीठी खुशबू चारों ओर फैलकर स्वतंत्रता का हर्षोल्लास के साथ उत्सव मना रही है। आज के दिन का महत्व किसी से छिपा हुआ नहीं है। यह दिन हमारे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वर्तमान में हमारे देश की आधुनिकता, उन्नति, सफलता हमारी कई महान हस्तियों एवं नेताओं के संघर्ष, बलिदान, देश प्रेम एवं वतन के लिए मर मिटने की निर्भय भावना का ही परिणाम है। मैं इन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को शत शत नमन करती हूँ। हम लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमें खुशी और शांति की धरती दी है, जहाँ हम बिना डरे अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हमें अपनी सरकार तक स्वयं चुनने की पूरी आजादी दी गई है। आज हमारे समाज में हर व्यक्ति, भले ही वह किसी भी धर्म, समुदाय, संघ का क्यों ना हो, सभी के पास समान रूप से अधिकार है। इस कारण हम सब एक हैं। किसी भी प्रांत का होने से पहले, किसी भी भाषा को अपनाने से पहले, किसी भी धर्म ईमान को अपने जीवन में उतारने के पहले हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा दिल एक समान गौरव से धड़कता है। हमारी रगों में हमारे वीर पूर्वजों के अमूल्य बलिदान का रक्त बहता है। सांसों में वीरों की गाथाएं घुलती है। यही तो हम भारतवासियों की असीम एवं सबसे श्रेष्ठ पूंजी है। वास्तव में हमारे देश के कुछ हिस्सों में सफलता के फलते फूलते परचम लहरा रहे हैं, पर दूसरी ओर कुछ हिस्से अंधकार से घिरे हैं। हमें मिलकर उन हिस्सों को रोशन करना होगा, वहाँ शिक्षा का दीप जलाना होगा और साथ मिलकर, हाथ मिलाकर सभी प्रकार के बंधनों और अंतरों को तोड़कर मेहनत करनी होगी। आइए आगे प्रण ले, भारत जैसे महान राष्ट्र को और अधिक खुशहाली, उन्नति, सफलता के सुंदर गहनों से सुसज्जित करें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। Thank you, Ishita. While we revel in the joyous moments, let us not forget the countless heroes who selflessly served our nation. Our armed forces, police, and other security personnel have always been at the forefront, protecting our borders and ensuring our safety. We express our deepest gratitude and salute their unwavering dedication and sacrifice. We dance for laughter, we dance for tears, we dance for madness, we dance for fear. But today, we dance for our glorious nation. So now we are thrilled to announce an inter-house dance drama competition by the students of grades 5th to 8th to pay tribute to the freedom fighters of our nation. So, for the same, I would like to introduce our esteemed judges. The judges are Sister Nima, Sapna teacher, and Abhi sir. I request the judges to please take their seats. A huge round of applause for all of them. होते हैं बलिदान कई तब देश खड़ा होता है, होते हैं बलिदान कई तब देश खड़ा होता है। अपने जीवन से भी बढ़कर देश बड़ा होता है, देश बड़ा होता है। वंदे मातरम। प्रस्तुत नाट्य नाटिका आपके समक्ष अविभाजित भारत से विभाजित भारत तक के घटना चक्र को दर्शाती है। उत्साहपूर्वक इसका आनंद लीजिए।
हमें भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सह कर, वक्त रुखसत उन्हें क्यों अभी न आई कह कर, गोद में आंसू जो टपके कभी रुख से बहकर, मेरा रंग बसंती चोला, मेरा रंग बसंती चोला, आज रंग दे हमारे रंग दे, मेरा रंग बसंती चोला, मेरा रंग बसंती चोला, मेरा रंग बसंती चोला। between India and Pakistan. Our forefathers made great sacrifices for freedom, and it is a day to honor their sacrifices. Today, we pay homage to the brave souls who fought for our liberty and reflect on the values and principles that define our great nation. So now, I invite Orange House to showcase their talent and rock the stage. Thank you.
की सनसनीखेज खबर। समुद्र के रास्ते से आए 10 आतंकवादियों ने मुंबई नगरी के सीएसटी स्टेशन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। होटल ताज सहित कई और जगहों को अपना निशाना बनाया, जिसमें सैकड़ों बेगुनाहों की जान गई। प्रधानमंत्री ने कहा, आतंकवादियों को इसका करारा जवाब मिलेगा। मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कदमों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कदमों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। ऐसे सोचेंगे तो दुनिया में कोई माँ अपने बेटे को देश के रास्ते में रुखसत नहीं करेगी। ऐसा मत सोचना, ऐसा कभी मत सोचना। तो इतनी छोटी उम्र में ही सबको छोड़कर चला जाएगा? तुमने जिंदगी में देखा है क्या है? मैंने वो माँ देखी है जिसने मुझे एक ही बात बताई है कि बेटे, अपने देश के लिए एक बार मरना 100 जन्म के बराबर होता है।
कर अपने। कितना खिलाओगी? खा ले बेटा, वैसे भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना पूरे साल में एक ही बार तो खाता है। भैया इस बार 2 लाख लगा लो, पिछले रक्षाबंधन में भी नहीं किया। मेरी प्यारी सी बहन को मेरी उम्र लग जाए। मेरी प्यारी गुड़िया। हेलो, कैप्टन, आपकी छुट्टी रद्द की गई।
माँ स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ। बेटा तू कहाँ चल दिया? माँ, सरहद से संदेशा आया है। कारगिल में जंग के हालात हैं। सभी सिपाहियों को जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। पर बेटा तू अभी 2 दिन पहले ही तो आया है, क्या अपनी माँ के साथ तुझे नहीं होगा? भारत माँ को मेरी जरूरत है, मुझे जाना ही होगा। दुश्मन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब हमें उसका जवाब सख्ती से देना होगा। याद करो, अब हमारा एक ही लक्ष्य है, विजय या वीरगति। Are you ready? Yes, sir. Hello, mate.
ब्यूटीफुल फिल्म। जय हिंद सर। हमने दुश्मन को देश के सीमाओं से खदेड़ दिया है और हमें विजय हासिल हुई है। अफसोस मगर हमारे कुछ साथी शहीद हो गए। देश से है प्यार तो हर कोई कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। Thank you viewers for your heartwarming dance performance. We owe a great thank you to our freedom fighters who gave their lives and made great sacrifices. Listening to great personalities not only gives us a vision, but it also boosts up our thought process. I would like to request our chief guest, Mr. Karthik Joshi, to inspire all of us with his motivational words. मैंने 2017 में अपनी रनिंग जर्नी स्टार्ट की थी जब मैं 16 साल का था। जब मुझे सिर्फ एक ही चीज़ और एक पॉइंट मेरे दिमाग में रहता था ना कि क्या कोई यंगस्टर कुछ ऐसा नया कर सकता है या जो कोई 7th क्लास में हो या कुछ वो ऐसी नई चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकता है जो उसके लिए बनी ही ना हो। एक स्कूल स्टूडेंट की लाइफ में कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, उसे स्कूल जाना है, उसे पढ़ना है, उसे उसी एम पे फोकस करना है जो उसके पेरेंट्स उसे बता दिया या फिर कुछ उसने डिसाइड किया। जब मैं रोज अपने स्कूल जाता था ना तो मैं देखता था कि पुलिस की कॉप्स, मेरे घर के पास में एक है ना पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, RAPTC जिसे कहते हैं, वहाँ पे हर दिन 500 पुलिस की कॉप्स ट्रेन करते थे खुद के लिए, किसी उन्हें आर्मी या पुलिस में सब भर्ती होता था। सो मैंने देखा कि वो सब इतने अच्छे से भागते थे ना कि मैं रोज इंस्पायर होता था, रोज खुद को पूछता था कि क्या मैं इनके जैसा भाग सकता हूँ या कोई और इतना कर सकता है। तो लगभग 10 दिनों तक सोचने के बाद मैंने सोचा कि एक बार मैं भी ट्राई करके देखता हूँ क्या मैं भाग पाता हूँ। उस समय से पता था कि रनिंग करने के लिए शॉर्ट्स और एक टी-शर्ट की जरूरत होती है और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। मैं जब फर्स्ट डे गया था ना तो घर से बोल के गया था कि मैं रन करने जा रहा हूँ। अब अपनी 4 महीने की सेविंग्स जो खुद के पैसे से इकट्ठे किए थे 267 रुपीज़, वो मैंने स्पेंड करके शूज़ परचेज किया था जो मेरे पास आज भी है। मैं फर्स्ट डे जब मैं गया मैंने ऑलमोस्ट 400 मीटर दौड़ा होगा, सिर्फ 400 मीटर डिस्टेंस, और उसके बाद रुक गया। मुझे लगा रनिंग हर किसी के लिए नहीं है, हर कोई नहीं भाग सकता है। उसके बाद मैंने ये देखा, मैंने बोला घर से तो बोलकर आ गया और इतनी बड़ी बड़ी ढींगे हाकर आया, इतनी बड़ी बातें करके आया था कि मैं दौड़ने जा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस करूँगा, मैं कुछ नया करूँगा। अब जल्दी घर जाता तो घर वालों के ताने और टॉन्ट से मैं खुद भी त्रस्त हो जाता। तो मैंने बोला कि अब यहाँ पर बैठ के 1 घंटा स्पेंड कर रहे थे कि घर पर जल्दी भी नहीं जाएंगे और कुछ ना कुछ सीख सकते हैं शायद। तो 47 मिनट मैंने ये ऑब्जर्व किया था, जो स्लो रन कर रहा था ना वो बहुत लंबे समय तक दौड़ रहा था और जो फास्ट रन कर रहा था वो थोड़ा सा दौड़ कर रुक जाता था फिर वापस स्टार्ट करता। तो मैंने बोला मैं स्लो रन करके ट्राई करता हूँ। तो मैंने अपने फर्स्ट डे 13 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद मैंने लगभग 1.5 साल सिर्फ प्रैक्टिस की, किसी भी ऑफिशियल इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। और जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने एक ऑफिशियल इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए ट्राई किया तो मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया था कि मुझे एक हाफ मैराथन दौड़नी है। मैंने मैराथन का डिस्टेंस बताया था 42.195 किलोमीटर होता है, हाफ मैराथन का डिस्टेंस 22.195 किलोमीटर होता है। तो जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, जब मैंने अपने पापा को बताया था तो सबसे पहले उनके मुँह पे मुस्कुराहट थी जो सार्कास्म होती है होती है कि पता है कि इस किलोमीटर कितना होता है, यहाँ से तू मतलब विजयनगर चले जाएगा और वापस घर भेजेगा, मैं एयरपोर्ट रोड पर रहता हूँ। सो लगभग 5 मिनट उनकी ये अटकी और उनके सार्कास्म से मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने जैसे तैसे मैराथन के रेस सेट किया।
लगभग 1 मंथ बाद मैराथन थी। मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर गया था। जिस दिन मैराथन थी, मैराथन तो सुबह 6 बजे से स्टार्ट होने वाली, मैं पूरी रात भर नहीं सो पाया। लाइफ का फर्स्ट टेस्ट था जिसमें खुद को प्रूव करना था, क्योंकि जो भी मैंने डिसाइड किया था वो किसी और ने नहीं किया था ना, या किसी ने कन्विंस करके मुझे पुश करके उसमें एक धकेला था। तब मेरे पेरेंट्स में से मम्मा को तो इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट पापा ने बोला कि ठीक है। तो मेरे छोटे भाई को और पापा दोनों ऑन रूट चले गए कि उनको पर लगता था कि मैं पूरा डिस्टेंस नहीं रन कर पाऊंगा, तो उन्होंने सोचा कि कहीं रास्ते में रुक गया तो वहाँ से पिक करके ढल जाएंगे। होता है क्या होता है ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दूसरों को दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। सो मैंने अपना रनिंग डिस्टेंस सुबह 6 बजे रेस स्टार्ट करना मैंने स्टार्ट किया। मैं पूरे रूट मैं पापा को ढूंढता रहा, पूरे रूट पापा मुझे ढूंढते हैं, ना उन्हें मिला ना मुझे मिले। जब 1 घंटा 32 मिनट में मैंने अपनी वो रेस पूरी की और लगभग 47 या 50 मिनट्स में मेरे पापा जब तक थक चुके थे मुझे ढूंढने के बाद 2 घर चले गए। उन्हें लगा मैं रेस बीच में छोड़कर कोई व्हीकल से घर पहुंच चुका हूँ या ऑटो वगैरह लेकर। तो अब जब मैंने रेस फिनिश की तो मैंने देखा पापा फिनिश लाइन पर भी नहीं है। मैंने बोला यही थके होंगे मुझे ढूंढते ढूंढते। वो खत्म किया, फिर मैंने किसी और का फ़ोन लेकर पापा से कॉन्टेक्ट करने के ट्राई किया। पापा को कॉल किया कि मेरी रेस पूरी हुई, आप कहाँ पर? तो बोले मैं तो घर आ गया, मुझे लगा तो रेस पूरी नहीं कर पाया होगा, कहीं रुक गया होगा, घर आ रहा होगा। ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने किसी ऑफिशियल इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। ऑल ओवर 20,000 पार्टिसिपेंट्स में से मेरी पोजीशन थी 62। तब मुझे लगा कि आपको लाइफ जब मुझे लगता था कि सिर्फ भागने से काम नहीं होगा, रनिंग सिर्फ रनिंग नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी ढूंढनी होगी जो आपको दुनिया से एक नए रास्ते पर लेके जा सके। 2018 में मैंने अल्ट्रा डिस्टेंस रनिंग को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। मैंने देखा था रनिंग क्या क्या होती है, कौन कौन से फॉर्मेट में होती है। तो मैंने जब रनिंग के बारे में देखा तो ट्रेल डिस्टेंस रनिंग होती है जिसमें पहाड़ों पर दौड़ना पड़ता है, स्काई रनिंग्स होती है जिसमें मतलब एक एवरेज टॉप तक के एलिवेशंस को गेन करना पड़ता है। एक अल्ट्रा डिस्टेंस रनिंग होती है जिसमें स्टेडियम जो 400 मीटर का स्टेडियम है उसमें कंटिन्यूसली कई घंटों तक दौड़ना पड़ता है, 12 घंटे 24 घंटे या 48 घंटों तक। द लास्ट मैन डिस्टेंस जिसकी कोई डेफिनेट फिनिश लाइन नहीं है, वो फिजिकल तो नहीं बट मेंटल बहुत टफ होता है। आपको पता ही नहीं कि आपका कॉम्पिटिटर कितने घंटे तक भाग सकता है। सो मैंने फर्स्ट टाइम टारगेट किया कि मैं कोई हेल रेस में पार्टिसिपेट करूँ। इंडिया की सबसे टफेस्ट रेस होती है द हेल रेस। मैंने फर्स्ट टाइम 60 किलोमीटर डिस्टेंस में पार्टिसिपेट किया जब मैंने 21 किलोमीटर करने की सिर्फ 4 मंथ बाद, अगले 4 महीने बाद। तो मुझे लगा कि हाँ देखने में बड़ा अच्छा दिख रहा था, इंटरेस्टिंग, इधर पहाड़ है, इधर बर्फ है, आप दौड़े जा रहे हो। मतलब जो उनका इंट्रोडक्शन वीडियो था वो इतना इंस्पायरिंग था और इतना क्रेजी था कि मेरे को खुद इंटरेस्ट आने लगा था इन सब चीज़ों को देखने का। तो जब मैं रेस रन करने लगा, टू बी ऑनेस्ट मेरे को लग रहा था कि हाँ बहुत अच्छा होगा, बट मेरे ड्यूरिंग रेस ऑर्गेनाइजर को 50 बार पूछा होगा, खुद को गालियाँ दी होगी, क्योंकि वो इतनी टफ रेस थी। 3,900 मीटर का एल्टीट्यूड था और वाज द एलिवेशन ऑफ 5,000 फीट और उसमें आपको -7 डिग्री सेल्सियस से लेकर +24 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मिलने वाला था। ये चीज़ों से मैं बिल्कुल अनजान था। अब हर एक चीज़ मैं बोलता हूँ बादाम खाने से कम से कम आती, बट ठोकर खाने से ज़्यादा आती, क्योंकि मैं 3 बार गया था उस रेस में। तो मैंने ये सीखा था कि है ना रनिंग को आपको सिर्फ करना ही नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें रेस के पहले प्रिपेयर करके जानी पड़ती है। अब मुझे है ना रनिंग करते करते लगभग 2 साल तक गए, बट मैं कुछ नया नहीं कर पाया था। अब 2 साल तक घर वालों को समझाना कि मैं कुछ कर रहा हूँ वो बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अब जब तक आप 2 साल में कुछ अचीव करके नहीं देंगे, आप हर साल पढ़ते, हर साल आपका फाइनल रिजल्ट आता है, उसमें या तो पास या फेल या कोई मेरिट करता है। अब आपके पास एक रिजल्ट है, बट किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में रिजल्ट तब तक नहीं आता है जब तक उसकी लाइफ में 6 या 7 साल घर से आती है, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर। 2 साल हो चुके थे, मैंने अपने पेरेंट्स को जैसे तैसे कन्विंस किया था। लगभग मेरी 1 महीने तक तो घर में भी लड़ाई चली थी। अब आप अपने घर में रहते हो और अपने घर में ही आप अपने पेरेंट्स से बात ना करो, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आपके पेरेंट्स खाना खाने पर आप उनके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते हो, क्योंकि आपकी लड़ाई है ना, क्योंकि आपको खुद को उनके सामने हारता नहीं देखना है। हमारे पास एक्सेप्टेंस कम होता है इस समय। हम जब स्कूल लाइफ में रहते हैं तो एक्सेप्टेंस हमें ऐसे भी नहीं होता, क्योंकि हम खुद को हारते नहीं देख सकते। आपके पेरेंट्स भी कभी खुद को तुमको हारते नहीं देख सकते। वो कभी नहीं चाहते कि आप ऐसे रास्ते पर निकल जाओ जहाँ पर आपको कोई फिनिश लाइन ना मिले या कोई डेफिनेट डेस्टिनेशन ना हो।
सो मैंने डिसाइड किया कि यार 50-60 किलोमीटर कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ ऐसा ढूंढो जो आपको और आगे लेकर जाए, दुनिया की राह से ही बदल दे। तो लगभग मैंने डिसाइड किया कि मेरे को 220 किलोमीटर भागना है। 220 किलोमीटर भागने में लगभग टाइम है 30 घंटे से भी ज़्यादा लगता है। तो उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको उससे पहले कभी 200 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। तो मैंने 26 जनवरी 2018 में इंदौर से भोपाल रन किया था 27 आवर्स में, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है। तो मेरे पापा एक्टिवा से मेरे नीचे इंदौर से भोपाल तक 27 घंटे तक ड्राइव कर रहे थे। अब क्या होता है ना कि आपको दुनिया को भी समझाना पड़ता है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो एक इंसान से मेरे फेवर बताऊँ, मेरे पापा थे और पूरी दुनिया मेरे मतलब मेरे बियॉन्ड थी कि तुम इतना नहीं करना चाहिए, इतना दौड़ने से पैर खराब हो जाता है, इतना दौड़ने से क्या मिलेगा। तो 3 सालों तक वो दुनिया से लड़ता रहा, मतलब उनको जवाब तो नहीं देता था, पर वो सुन के खुद को मोरली वीक फील करता था कि यार क्या करूँगा। अब वो फ्रस्ट्रेशन और वो गुस्सा भी भरा हुआ रहता था। तो मैं जब ऑफिशियली जब 220 किलोमीटर और 250 किलोमीटर के लिए पार्टिसिपेट किया ना, तो हर बार अपना बेटर वर्जन वहाँ पे प्रोवाइड करता था। जब मैंने फर्स्ट टाइम 220 किलोमीटर रन किया था, वो बैंगलोर में था, तब 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, मेरे पैर के सारे नाखून निकल चुके थे, पैर के नीचे की स्किन निकल चुकी थी, और मैंने उससे है ना 46 आवर में फिनिश किया। पता नहीं था ना 220 किलोमीटर इतने गर्म टेम्परेचर में कैसे भागते हैं। वो हो गया। उसके बाद भी बहुत सारे इवेंट्स हो गए। फिर है ना मुझे एक स्पॉन्सर की जरूरत है, क्योंकि फैमिली इतना डील नहीं कर सकती है। रनिंग एक बहुत एक्सपेंसिव गेम है जब आप अपना लेवल अपग्रेड करते हो। तो मैंने जैसे तैसे अपने घर से है ना बहुत सारे रेसेस के लिए तो पैसे नहीं लिए थे, बट अब फैमिली की कंडीशंस होती है, क्योंकि अभी आप कुछ अर्न करके नहीं दे रहे हो। जैसे आप सब स्कूल करते हैं ना कि आपने 10 में अच्छा मार्क किया पर आपको स्कूल से पैसा नहीं मिलेगा, बट आप जब वहाँ पहुँच जाते हो, जब आपकी जॉब मिलती है तब आपको पैसा मिलता है। तो 10, 12, 15 साल तो आपको पढ़ना ही है। तो वैसे ही मेरे साथ था। तो लगभग जिंदगी के 6 साल तक सिर्फ यही अचीव किया है कि आपके पास अचीवमेंट थे। अचीवमेंट तो सबको दिखते थे, बट उसके बीच की उसकी पहले की प्रोसेस किसी को भी नहीं दिखती है। हमारे यहाँ वही डिफरेंस है, प्रोसेस और अचीवमेंट। प्रोसेस विल बी रिवॉर्डेड, ये मैं जो सोचता हूँ ये होना चाहिए। अचीवमेंट तो सिर्फ एक ही दिन का होता है। मैं बोलता हूँ कि सिर्फ एक 7 घंटे की रेस, जिसमें 100 किलोमीटर को भागने मुझे जिसमें 7 घंटे लगते हैं, उसके लिए 7000 घंटे में मेहनत करता हूँ। आप 2 साल हो चुके थे, मैंने अपने पेरेंट्स को जैसे तैसे कन्विंस किया था। लगभग मेरी 1 महीने तक तो घर में भी लड़ाई चली थी। अब आप अपने घर में रहते हो और अपने घर में ही आप अपने पेरेंट्स से बात ना करो, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आपके पेरेंट्स खाना खाने पर आप उनके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते हो, क्योंकि आपकी लड़ाई है ना, क्योंकि आपको खुद को उनके सामने हारता नहीं देखना है। हमारे पास एक्सेप्टेंस कम होता है इस समय। हम जब स्कूल लाइफ में रहते हैं तो एक्सेप्टेंस हमें ऐसे भी नहीं होता, क्योंकि हम खुद को हारते नहीं देख सकते। आपके पेरेंट्स भी कभी खुद को तुमको हारते नहीं देख सकते। वो कभी नहीं चाहते कि आप ऐसे रास्ते पर निकल जाओ जहाँ पर आपको कोई फिनिश लाइन ना मिले या कोई डेफिनेट डेस्टिनेशन ना हो। सो मैंने डिसाइड किया कि यार 50-60 किलोमीटर कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ ऐसा ढूंढो जो आपको और आगे लेकर जाए, दुनिया की राह से ही बदल दे। तो लगभग मैंने डिसाइड किया कि मेरे को 220 किलोमीटर भागना है। 220 किलोमीटर भागने में लगभग टाइम है 30 घंटे से भी ज़्यादा लगता है। तो उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको उससे पहले कभी 200 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। तो मैंने 26 जनवरी 2018 में इंदौर से भोपाल रन किया था 27 आवर्स में, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है। तो मेरे पापा एक्टिवा से मेरे नीचे इंदौर से भोपाल तक 27 घंटे तक ड्राइव कर रहे थे। अब क्या होता है ना कि आपको दुनिया को भी समझाना पड़ता है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो एक इंसान से मेरे फेवर बताऊँ, मेरे पापा थे और पूरी दुनिया मेरे मतलब मेरे बियॉन्ड थी कि तुम इतना नहीं करना चाहिए, इतना दौड़ने से पैर खराब हो जाता है, इतना दौड़ने से क्या मिलेगा। तो 3 सालों तक वो दुनिया से लड़ता रहा, मतलब उनको जवाब तो नहीं देता था, पर वो सुन के खुद को मोरली वीक फील करता था कि यार क्या करूँगा। अब वो फ्रस्ट्रेशन और वो गुस्सा भी भरा हुआ रहता था। तो मैं जब ऑफिशियली जब 220 किलोमीटर और 250 किलोमीटर के लिए पार्टिसिपेट किया ना, तो हर बार अपना बेटर वर्जन वहाँ पे प्रोवाइड करता था। जब मैंने फर्स्ट टाइम 220 किलोमीटर रन किया था, वो बैंगलोर में था, तब 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, मेरे पैर के सारे नाखून निकल चुके थे, पैर के नीचे की स्किन निकल चुकी थी, और मैंने उससे है ना 46 आवर में फिनिश किया।
पता नहीं था ना 220 किलोमीटर इतने गर्म टेम्परेचर में कैसे भागते हैं। वो हो गया, उसके बाद भी बहुत सारे इवेंट्स हो गए। फिर है ना मुझे एक स्पॉन्सर की जरूरत है क्योंकि फैमिली इतना डील नहीं कर सकती है। रनिंग एक बहुत एक्सपेंसिव गेम है जब आप अपना लेवल अपग्रेड करते हो। तो मैंने जैसे तैसे अपने घर से है ना बहुत सारे रेसेस के लिए तो पैसे नहीं लिए थे, बट अब फैमिली की कंडीशंस होती है क्योंकि अभी आप कुछ अर्न करके नहीं दे रहे हो। जैसे आप सब स्कूल करते हैं ना कि आपने 10 में अच्छा मार्क किया पर आपको स्कूल से पैसा नहीं मिलेगा, बट आप जब वहाँ पहुँच जाते हो, जब आपकी जॉब मिलती है तब आपको पैसा मिलता है। तो 10, 12, 15 साल तो आपको पढ़ना ही है। तो वैसे ही मेरे साथ था। तो लगभग जिंदगी के 6 साल तक सिर्फ यही अचीव किया है कि आपके पास अचीवमेंट थे। अचीवमेंट तो सबको दिखते थे बट उसके बीच की उसकी पहले की प्रोसेस किसी को भी नहीं दिखती है। हमारे यहाँ वही डिफरेंस है, प्रोसेस और अचीवमेंट। प्रोसेस विल बी रिवॉर्डेड, ये मैं जो सोचता हूँ ये होना चाहिए। अचीवमेंट तो सिर्फ एक ही दिन का होता है। मैं बोलता हूँ कि सिर्फ एक 7 घंटे की रेस जिसमें 100 किलोमीटर को भागने मुझे जिसमें 7 घंटे लगते हैं, उसके लिए 7,000 घंटे में मेहनत करता हूँ। आपको कितने लोग जानते हैं? एक्चुअली उनके बारे में कितने लोगों ने पढ़ा है? 2008 के ओलंपिक में माइकल फिलिप्स ने 4 मेडल्स जीते थे ओलंपिक में, सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज सभी मिला कर। तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि अगले ओलंपिक में मैं 8 गोल्ड मेडल जीतूंगा। अब मैं आपके सामने भविष्यवाणी करके चली हूँ कि जब मैं अगली बार अगर यहाँ पर आया तो मैं 500 करोड़ रुपये कमाऊंगा लेकर आऊँगा, तो आप सबको कैसा लगेगा? सबसे पहले तो आप मजाक उड़ाओगे आसपास में। तो वो उस एक ऐसा एथलीट था जिसने भविष्यवाणी की थी कि मैं 8 ओलंपिक मेडल जीतूंगा। तब बहुत सारे न्यूज़ जर्नलिस्ट ने उनकी बहुत मजाक उड़ाई थी। इट्स लाइक हर न्यूज़ में, हर न्यूज़ प्रिंट मीडिया में, डिजिटल मीडिया में हर दिन उनके नाम से मीम चल रहे थे यूएस में सभी जगह, जाके सबसे अच्छे स्विमर्स थे। जब 2012 का ओलंपिक हुआ तो उस एथलीट ने, माइकल फिलिप्स ने 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे ना, उसमें इतनी सिल्वर मेडल मिला उनके रो में। तो जब जिस जर्नलिस्ट ने पूछा था कि आपको इतना एटीट्यूड क्यों है, आप इतने मेडल्स कैसे जीत सकते, जिस मीडिया ने उनकी इतनी मजाक उड़ाई थी, उन्होंने बताया कि मैं हर दिन 8 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ और 4 साल में जब मैंने 8 घंटे प्रैक्टिस किए तो 11,680 घंटे या 11,680 आवर्स ट्रेनिंग किए। अगर कोई रोड पर चलता है इंसान भी इतनी प्रैक्टिस करेगा तो वो भी 8 ओलंपिक मेडल जीत सकता है। वो ये बात बोली। तो प्रैक्टिस में परफेक्ट, ये सिर्फ एग्जाम्पल कहने के लिए था, बट इसे करना उतना ही डिफिकल्ट है। मैंने 2020 में इंडिया बैक एंड था, एक लास्ट मैन स्टैंड से रेस होती है। मैं कहता हूँ किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को करना जितना फिजिकली टफ नहीं है उससे ज़्यादा मेंटली टफ है। आपके स्कूल में या कैंपस में जो भी कोई इवेंट होता होगा ना, उसमें से बहुत से लड़के बच्चे होते हैं जो आगे होकर पार्टिसिपेट करते हो। हमारे पास एक्सेप्टेंस कम होता है। मैंने शुरुआत में बोला था हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि अगर हम फेल हो गए तो किसी को क्या बताएंगे, ये क्या वो दिखाएंगे। सो है ना, वो रेस ऐसी थी जितनी फिजिकली टफ है उससे कहीं ज़्यादा मेंटली टफ, कोई डेफिनेट फिनिश लाइन नहीं है ना, क्योंकि लास्ट मैन स्टैंड है। जब तक मेरे सेकंड लास्ट पर्सन नहीं बचेगा तब तक मुझे भी रन करना है, या मैं नहीं रन कर पाया तो मैं बाहर चले जाऊँगा या आउट ऑफ द रेस हो जाऊँगा, DNF हो जाएगा। और उन सबसे ज़्यादा टफ होता है इमोशनली। जब मैं एक बार अगर सोच लिया कि मैं थक गया तो मैं कैसे रन कर पाऊँगा ना आगे। अगर कोई सोच रहा है मैं थक गया हूँ तो उससे कोई उठाकर भी लेके जाएगा तो भी आगे नहीं जाना चाहेगा। तो वो रेस 25 जनवरी 2020 में स्टार्ट हुई सुबह 7 बजे। मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे सुबह 6 बजे कॉल किया था कि रेस कब स्टार्ट होगी, 7 बजे। अब मुझे नहीं पता था कब खत्म हो जाएगी, तो मैंने कोई फिक्स टाइम नहीं बताया। तो वो रेस सुबह 7 बजे स्टार्ट हुई थी। उसमें है ना इंडिया के 40 बेस्ट रनर्स थे। हर एक रनर्स ने लगभग 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर तक पहले दौड़ चुका था। अब उनके और मेरे बीच में कंपटीशन और सिर्फ एक ही चीज़ डिफरेंस थी, उनकी एज और मेरी एज। आई एम द यंगेस्ट वन इन द फॉर्मेट इन द वर्ल्ड। मैंने 19 की एज में वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वालिफाई कर लिया था उस। मैंने 39 आवर्स में 262 किलोमीटर नॉन स्टॉप रन किया था और स्लिपलेस। अब वो ऐसे रेस होती है जिसमें आपको कंटिन्यूसली फॉरेस्ट में रन करना पड़ता है और हर घंटे उसमें आपको 7 किलोमीटर रन करना है। ईजी लगता है 7 किलोमीटर पहले घंटे में, दूसरे घंटे में भी ईजी लगता है, 12 घंटे में, फिर 24 घंटे का 24 घंटे में 100 माइल डिस्टेंस हो जाता है। 100 माइल्स का 161 किलोमीटर। जब 40 आवर्स हो गए ना, 30 रनर्स, तब मैं 260
किलोमीटर के अप्रॉक्स पहुंच चुका था। फिर वो रेस फिनिश हो गई। द यंगेस्ट पार्टिसिपेंट और यंगेस्ट विनर इन द एज कैटेगरी, मतलब वर्ल्ड वाइड, जिसने उस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया था। फिर है ना, अब मेरे को लगता था कि मैं सिर्फ अभी यही रुका हुआ हूँ, मुझे कुछ नया फिर करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक ही रो को फॉलो करते हो ना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जिंदगी में खुद को स्टेबल समझना या कुछ नया करते हुए इनोवेटिव दिमाग के साथ आगे बढ़ना। तो मैंने देखा कॉर्पोरेट मैराथन होती है साउथ अफ्रीका में। अब मैं तो वो बंदा था जो लोकल ट्रेन से मैं ट्रैवल करता था, तो फर्स्ट टाइम फ्लाइट में भी नहीं करना। मैं अपनी 21 साल 20 साल की एज तक पहली बार फ्लाइट 20 साल की एज में पहली बार फ्लाइट पर बैठा था। और जब मैं फर्स्ट टाइम किसी ऑफिशियल रेस के लिए इंदौर से बाहर गया था ना, तब मैं लोकल ट्रेन में गया था। मेरे को पता ही नहीं था कि ट्रेन में ट्रैवल कैसे करते हैं। तब मैं 17 साल का था। तो जब मेरे को इंदौर से बैंगलोर भी जाना था तो मैं लोकल ट्रेन में जाता था, और उसमें पूरे खड़े हुए ड्यूरेशन, क्योंकि फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर पाती थी। तो जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने अपने स्पॉन्सर को अप्रोच किया था कि मेरे को कॉर्पोरेट मैराथन रन करनी है, जो साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड की सबसे पुरानी मैराथन है, 96 ईयर हो गया इस साल। जब लास्ट टाइम मैंने रन किया था तो मैंने टारगेट किया था कि मैं इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीतूंगा, मैं 7.5 घंटे से कम समय में रन कर आऊँगा। अब मैं हूँ ना प्योर वेजिटेरियन, तो अब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि आप ऐसी कंट्री में जा रहे हो जहाँ पे उनका जो फूड साइकिल है उसमें 78% नॉन वेजिटेरियन लोग हैं। वो पानी से ज़्यादा तो दारू पीते हैं, मैं तो दिन भर पानी में ढंग से भी वो पाए। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि आप ऐसे लोगों को देख रहे हो जिनकी हाइट 6 फीट से भी ज़्यादा है, और हम इंडियंस की एवरेज हाइट है 5.7। मैं जब फर्स्ट टाइम उन सबके साथ कॉम्पिटिट कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि यार हम इंडियंस हैं, इनकी हाइट इतनी ज़्यादा है, इनका शू साइज 13 है, मेरा शू साइज 7 है। उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 2 मीटर्स का था, मेरा 1.37 मीटर्स का है। से कंपैरिजन था थोड़ा सा, जहाँ मैं खुद को कम आंक रहा था। वो भी समझ सकते कि वही जो मेंटली ट्रेन मुझे पहले करना चाहिए था वो मुझे बाद में करने का मौका मिला। मैंने बोला था ना ठोकर खाकर ही सीखते हैं, तो उस समय मुझे समझ आया जब मैं 7:30 आवर्स टारगेट कर रहा था। वो मेरा टीम ओरल पोर्शन था जहाँ पर मैं उससे 7 आवर्स 50 मिनट्स में फिनिश कर पाया। वर्ल्ड का टफेस्ट मैराथन है कॉर्पोरेट मैराथन, जो 90 किलोमीटर डिस्टेंस का होता है। अगर यहाँ से लोग कोंकरेश्वर के होगा तो पूरा रूट जैसा बना हुआ ना वैसे 90 किलोमीटर से ओके। सो मैंने उस समय सिल्वर मेडल क्लॉक नहीं कर पाया। मेरी लाइफ का सबसे डिमोटिवेटेड टाइम था जब मैं खुद को कम समझ रहा था। फिर मैंने 2023 में वापस ट्राई किया उस सीरीज को। मैंने फर्स्ट टाइम में ही सेकंड टाइम में 7:30 आवर्स से कम समय में 90 किलोमीटर डिस्टेंस को फिनिश किया। देन फर्स्ट सिल्वर मेडल विन किया इंडिया के लिए। पर मैंने सिल्वर मेडल विन किया है, जिसमें मैंने 100 किलोमीटर 7:48 मिनट में रन किया। देन अभी मैं अक्टूबर में यूएसए जा रहा हूँ, टेनेसी, जिसका जो रेस होती है वर्ल्ड बैकयार्ड का लास्ट इंस्टेंट, उसमें हर एक कंट्री का सिर्फ एक पार्टिसिपेंट होता है ना। वर्ल्ड के 72 कंट्री के 72 पार्टिसिपेंट्स हैं जो टिल द लास्ट रन करते हैं। जिन्होंने लास्ट ईयर एक रनर है जिन्होंने लास्ट ईयर 575 किलोमीटर रन किया था नॉन स्टॉप और स्लिपलेस। आई एम टारगेटिंग 500 किलोमीटर दिस ईयर। ये मेरे कुछ प्लान्स हैं, और मैं सभी को कहता हूँ कि पार्टिसिपेशन से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। स्टार्ट करना, जीतना, हारना एक अलग पोर्शन है। जो पार्टिसिपेट करता है वही एक्चुअल में विनर होता है, क्योंकि इसकी लाइफ का एक बड़ी पोर्शन होता है जब वो टॉप बैरियर पे होता है। और हर दिन मैं अपना जीरो से शुरू करता हूँ। मैं सभी को अपना दिन जीरो से शुरू कीजिए, क्योंकि आपको फेलियर में कभी कोई डर नहीं होगा। जब आप अपना दिन आपने आज तक जो सीखा है अगर आपको उससे जाकर जीरो कर दीजिए। एटीट्यूड भूल जाइए, उसका एक्सपीरियंस याद रखिए। जब आप सुबह उठेंगे ना तो जीरो से स्टार्ट करेंगे। जो पूरे दिन भर सीखेंगे वो सीखा है, ना कोई फेलियर होगा ना बैकफॉल होगा। थैंक यू सो मच। Thank you, sir, for enlightening our path through your inspiring words and sportsman spirit. Last but not the least, I hereby call upon our school editor, Ms. Shrek Pandey, to propose a vote of thanks. चलो आज फिर से वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर। देशभक्तों के खून की
वो धारा याद कर लें। A very happy Independence Day to everyone present here. We Indians truly understand how special our Independence Day is. Just like a bird that is set free from its cage, we Indians are at great heights that no one would have imagined back in 1947. We must be grateful to all those sung and unsung heroes who helped us in becoming independent and led us to the place where India lies today. I, Chair Pandey, on behalf of the Raphaelite family, would like to thank our Honorable Chief Guest for gracing this occasion by his presence. And I would also like to thank our respected principal, Sister Rose, and sisters of the management who inspired us and taught us values which make us feel proud as an Indian. Om Nani Gyani Sadrasham Pavitrameha Vidyate, अर्थात इस संपूर्ण संसार में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है. There is nothing in this whole world as pure as knowledge. Thank you teachers for blessing us with knowledge and wisdom and making this event a true success. Just like how the sky is incomplete without stars, a school is incomplete without its students. Thank you students for being a part of this grand function, performing so well and keeping up your dedication. Support staff, we would like to thank you all because this would not have been possible without you. And once again, I thank everyone present here. Thank you, Jai Hind. Good morning, everyone. So now is the most awaited moment. Now it is the time for? So all of you are excited for that? Yes! So really our judges really had a difficult time choosing a winner. It was really a very tough competition and all the participants, they performed very well. So now I will just like to declare the result for the singing competition. And we will start from the third position. So in the singing competition, the third position goes to, any guesses?